Hey everyone, welcome back to my channel. I am Chetna, and in today's video I'll be discussing everything that you need to know before you visit to Dubai. So I'll be basically covering about visas, tickets, travel, hotel bookings, passports, everything that you need to know before you visit to Dubai. एंड आई हैव ऑल्सो विजिटेड दुबई रिसेंटली, तो फिर मैंने जो भी गलतियाँ की है, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आई मिस्ड कैरिंग और वॉट एवर वॉज द issue that I faced in Dubai, I'll be just sharing it with you so that it becomes easier for you when you visit Dubai. So starting with the passport, you have a passport that is valid for 6 months from the date of your travel. That will be sufficient. And also make sure to carry a copy of your passport, visa and few passport size photographs just in case scenarios. अपने पास रख लेना, it's not mandatory, but just keep a copy also, that will be good. सेकेंडली बुक योर रिटर्न टिकट, जाने और आने दोनों का टिकट आप कर लो एक साथ ही दुबई का. और ऑल्सो बुक योर होटल, मतलब जितने दिन के लिए आप दुबई में स्टे कर रहे हो, यू शुड हैव कन्फर्म्ड होटल बुकिंग्स फॉर ऑल ऑफ द डेज. क्योंकि एट द एयरपोर्ट समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड टू सबमिट लाइक शो योर होटल बुकिंग्स, एंड ऑल्सो इन द वीज़ा प्रोसेस समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड. तो अगर आपके पास होटल बुकिंग्स प्रायर है तो बेटर है. एंड इफ यू आर स्टेइंग विद गोइंग टू स्टे विद योर फैमिली और समवन, देन यू कैन हैव एन इन्विटेशन लेटर और या फिर सम प्रूफ रिगार्डिंग दैट विल बी सफिशिएंट. For the visa, if you have US or UK visa, then you can get visa on arrival. So that will be charged around 5,500 rupees, and in dirhams it will be around 2,240 dirhams. But in case if you don't have US or UK visa, then you should get your visa in advance before visiting to Dubai. And in that case, what you can do is, if you are booking tickets through Etihad Airways or Emirates, तो वेबसाइट पे ही यू कैन गेट एन ऑप्शन टू बुक योर वीज़ा ऑल्सो. बट इफ़ यू आर बुकिंग थ्रू एनी अदर एयरलाइंस, तो यू कैन बुक योर वीज़ा थ्रू एनी थर्ड पार्टी ऐप सच एज Neo or Make My Trip. Just compare the price everywhere. Wherever you find sufficient, you can just book it over there. And for the visa, the documents that you will be asked is front and a photograph of the front and back last page of your passport, your confirmed travel bookings, your hotel bookings, and proof of funds such as your last 1 month or 3 months bank statement. That will be sufficient. Moving on to the currency exchange, so you can also exchange your currency at the airport itself, like Dubai airport पे भी या फिर at any Indian airport you can exchange your currency. But वहाँ पे currency exchange rates are comparatively बहुत high होता है than any other local exchange agents, फॉरेक्स एक्सचेंज एजेंट. तो आप कहीं भी लोकल में यू कैन, कोई भी लोकल फॉरेक्स एक्सचेंज एजेंट से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो प्रायर नहीं. बट उनमें वो एक्सचेंज करने के लिए भी आपको अपना फ्लाइट टिकट्स और अपना होटल बुकिंग्स दिखाना ही पड़ेगा. विदाउट दैट दे ऑल्सो वोंट एक्सचेंज. कमिंग टू द क्रेडिट कार्ड्स और द डेबिट कार्ड्स दैट यू शुड कैरी, मेक श्योर दैट यू हैव अ कार्ड विच डजंट चार्ज एनी मार्कअप फीस. कोई मार्कअप फीस वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे फिर एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा. मेक श्योर यू डोंट हैव टू, you have a card which doesn't charge markup fees. Example of that card is you can have a Neo card or Unionx Wave card. I personally had Neo card and उसमें issues नहीं आती है, but sometimes डाउन टाइम चल रहा होता है Neo का, तो for that reasons कोई और भी आपका जैसे SBI हुआ, एक्सिस, ICICI, इनका भी एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड रखो just for emergency purposes. That's it. और आफ्टर क्रेडिट डेबिट कार्ड्स कम्स इंटरनेशनल रोमिंग. मतलब सिम कार्ड्स के लिए क्या करना चाहिए आपको, तो फॉर इंटरनेशनल रोमिंग आई सजेस्ट यू कि आप इंडिया में ही 3-4 घंटे बोर्ड करने से पहले इंटरनेशनल रोमिंग ले लो. लेकिन अगर आपने नहीं लिया है इंटरनेशनल रोमिंग, तो आप दुबई पहुंचने के बाद भी आपको इमिग्रेशन करने के बाद एक DU सिम कार्ड मिलेगा जिसमें 10 days का 10 GB डेटा रहेगा, 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा. आफ्टर दैट आप रिचार्ज कर लो उसको एंड अपने हिसाब से यूज़ करो, तो वो चल सकता है. और वहाँ के लिए आप एक करीम ऐप आती है, करीम ऐप इंस्टॉल कर लेना, तो उसके आपको फूड डिलीवरी, कैब्स, टैक्सी सब के लिए करीम ऐप ही वहाँ पे यूज़ होता है. तो बहुत कन्वीनियंट होगा आपके लिए. नेक्स्ट, आप वहाँ पे अगर ट्रैवल कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर चीपर ऑप्शंस टू ट्रैवल, तो मेट्रो एंड बसेस आर comparatively very cheap than the taxis, तो आप वो कर सकते हो. एंड फॉर दैट यू नीड ए नॉल कार्ड. नॉल कार्ड आप फर्स्ट टाइम अगर मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, दे विल यू कैन जस्ट परचेज अ नॉल कार्ड और उसको आप रिचार्ज करके यू कैन जस्ट यूज इट. इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड नाइस. आफ्टर दैट आई विल बी सेइंग यू कि कैरी योर यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर, दैट्स अ मस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने में. तो इफ़ यू हैव यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर इट विल बी नाइस.
एंड ऑल्सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि बहुत गर्मी होती है दुबई में. इफ यू आर ट्रैवलिंग इन समर मंथ्स तो कैरी लाइट वेट क्लोथ्स, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नवंबर टू मार्च, let's say, then carry a light jacket for the evenings. This is all that you need to know before you travel to Dubai. Or after that, in the next video, I'll be sharing with you all what was my 5-day itinerary to Dubai and how I spent my days in Dubai. I'll be sharing that. Stay tuned. Bye bye.